Good afternoon students, welcome to today's video lecture of straight lines. Let us continue from where we had left. आज मैं आपको slope of a line find करना सिखाऊंगा using another method. Okay, so आज आपको नया definition मिलेगा slope of a line का. Consider करो x axis और y axis को. x axis और y axis draw करो. x axis और y axis draw करो. x axis x dash, y axis y dash. x एक्सिस और y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं कहां पे? ओरिजिन पे O 0 0. इतना आपको पता है. अब आप ये याद रखो कि OX इज पॉजिटिव x एक्सिस और OX डैश इज नेगेटिव x एक्सिस. तो ये आपको याद रखना है. ये है पॉजिटिव x एक्सिस टुवर्ड्स राइट और OX डैश टुवर्ड्स लेफ्ट वो है नेगेटिव x एक्सिस. वो आपको याद रखना है. फिर OY टुवर्ड्स अप वो क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस. पॉजिटिव y एक्सिस और OY डैश जो नीचे है वो है टुवर्ड्स डाउन वो है नेगेटिव y एक्सिस. ठीक है. अब गिव द हेडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन. ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन अब लिखो. दूसरी डेफिनेशन हम करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन. सपोज अ लाइन L, सपोज एक गिवन लाइन L है. सपोज अ गिवन लाइन L, suppose the given line L makes an angle of measure theta. Suppose the given line L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis, with positive direction of x axis मतलब towards right, positive direction of x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. क्या रखना है? Suppose a line L makes an angle of measure theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. तो उसका slope ये खाली आगे लिखो अच्छे तरीके से. आपको रिकॉल करना है, 2-3 बार याद करो. Suppose a line L makes an angle of measure theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. तो आपको याद रखना है कि slope of L जो है m वो है tan theta. It will be equal to slope of line L will be m which is equal to tan theta. The slope of L is m is tan theta. जहाँ पे line L makes an angle of measure theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Here अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो याद रखने का 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 180 डिग्री और थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. थीटा 0 हो सकता है, 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं होगा और 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा और थीटा 90 डिग्री नहीं होगा. और अगर हम रेडियन में रखते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 180 डिग्री कितना होता है? पाई. और थीटा क्या नहीं होगा? 90 डिग्री मतलब π/2 नहीं होगा. ये आपको याद रखना है. तो मैंने क्या डेफिनेशन दिया? सपोज लाइन L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. Then slope of line L is m is equal to tan theta और theta किसके बीच में आएगा? 0 less than equal to theta less than pi, theta not equal to π/2 in radian. और अगर डिग्री में कंसीडर करना है 0 डिग्री less than equal to theta less than 180 डिग्री, but theta क्या नहीं होना चाहिए? 90 डिग्री, because tan theta मतलब tan of 90 डिग्री does not exist. अब मैं आपको उसके लिए 2-3 ऐसे डायग्राम्स बताता हूं. Suppose a line L makes an angle of measure theta with positive direction of x-axis. Suppose line L है जो ऐसा एंगल बना है. Suppose line L है, 2-3 केसेस मैं आपको बताता हूं. 2-3 केसेस मैं आपको बताता हूं. कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो सपोज लाइन L ऐसी, तो दिस इज द लाइन L, दिस इज x एक्सिस x dash, this is y axis y dash, they are perpendicular at origin. That is understood. Okay, origin O 0 0 लिखने की जरूरत नहीं. That is understood. Line L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis. Suppose ये लाइन L है तो x एक्सिस के साथ दो एंगल बना दी. एक तो ये वाला एंगल, either this angle or this angle, but with positive direction of x axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मतलब टुवर्ड्स राइट. तो टुवर्ड्स राइट, लाइन के टुवर्ड्स राइट कौन सा आता है?
ये वाला एंगल के ये वाला एंगल, यू अंडरस्टूड, दिस वाला एंगल, तो ये थीटा होगा, कि यहाँ पे थीटा ये होगा कि लाइन L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. तो इधर स्लोप m कितना हुआ, therefore स्लोप m tan theta हो गया। फिर सेकेंड एक डायग्राम में देखा तो बोले सर लाइन हमेशा वहां पे होगी, नहीं, लाइन हमेशा वहां पे नहीं होगी, लाइन अलग अलग जगह पे हो सकती है, आई एग्री विद यू। तो उसमें अगर मैं सोचूं सपोज द लाइन L, सपोज सेकेंड केस में अगर ऐसा डायग्राम है, y axis, this is x axis, x dash, y dash perpendicular meeting at origin, suppose like ऐसे, this is line L, the line is L, so the line L again is making two angles, एक towards right this and again towards that, with x axis in clockwise direction और anti clockwise, anti clockwise मतलब यहाँ पे कंसीडर करने का, ऐसा anti clockwise means like this और clockwise मतलब ऐसा होता है, तो anti clockwise direction में वो with the line L is making theta with positive direction of x axis in anti clockwise direction, तो कौन सा एंगल हो सकता है थीटा, ये वाला कि ये वाला, you can write this as with equal only towards right with positive direction of x axis मतलब towards right वाला, मतलब ये एंगल आएगा कि ये एंगल आएगा, क्योंकि लाइन तो दो एंगल बनाती है, तो हम लोग कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, यस towards right means with positive direction of x axis मतलब with positive x axis towards right होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला एंगल थीटा, ये ऐसा थीटा होगा। तो इधर स्लोप m कितना आएगा, tan थीटा, इज अंडरस्टूड। और हां लाइन ओरिजिन से भी पास हो सकती है, लाइन ओरिजिन से पास नहीं भी हो सकती, ये दो मैंने एग्जांपल कंसीडर किए जिसमें लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो सकती, लाइन ओरिजिन से ऐसे पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, सेम आइडिया हमारा, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। अब लाइन जो है वो क्या कर सकती है, टाइप्स ऑफ लाइंस हमने किए, टाइप्स ऑफ लाइंस हमने किए, वो बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो थियरी क्या याद रखने का, सपोज अ लाइन L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis, पर कौन से डायरेक्शन में, in anti clockwise direction, suppose the line L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis in anti clockwise डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखने का स्लोप ऑफ लाइन L जो m होता है लेट, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज m और वो हो जाएगा tan ऑफ दैट एंगल, tan थीटा, और हियर वो थीटा क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई, पर थीटा क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। और अगर दैट इज अगर हम डिग्री में रखते हैं तो 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 180 डिग्री, पर थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, ओके। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ लाइन कौन से थे, टाइप्स ऑफ लाइन कौन से थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर था नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो अब मैं ये बताऊंगा, इस डेफिनेशन से हमको पता हो जाना चाहिए कि हमने स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स व्हेन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स आर गिवन निकाला, तो उसमें हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे, उसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड एंड स्लोप ऑफ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल लाइन इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो सपोज वो तीन केसेस हम अलग अलग करते हैं कि सपोज द लाइन L इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड केस में लाइन L इज वर्टिकल, तब हम केसेस निकालते हैं अलग अलग। लाइन L इज हॉरिजॉन्टल, लाइन L इज हॉरिजॉन्टल, लाइन L इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन
perpendicular to. What is horizontal line? Horizontal line, x axis, x dash, y dash is the y axis. Okay, ये यहाँ पे ऐसे perpendicular. What is a horizontal line? Horizontal line का definition क्या होता है? It is a line perpendicular to y axis. तो horizontal line क्या हो सकती है? x axis हो सकती है या a line parallel to x axis हो सकती है. तो और हाँ, इधर line L makes an angle of measure theta in positive direction of x axis है. तो इधर line L is horizontal मतलब वो perpendicular to x axis मतलब L ये हो सकती है. perpendicular to x axis मतलब यहाँ पे भी हो सकती है और L फुल x axis हो सकती है. इसलिए मैं x axis पे थोड़ा सा वापस मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ओके, तो उसी पे मार्क कर रहा हूँ. सो लाइन L can be x axis also, yes or no? और जब लाइन L, here line L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis. Here L is horizontal. Here L is horizontal. तो horizontal line कितना एंगल बनाएगी? ये horizontal line है, ये horizontal line, ये horizontal line, ये horizontal line है. तो horizontal line कितना एंगल बनाएगी with positive direction of x axis? थीटा क्या होगा? 0. इसलिए इधर थीटा 0 होगा. इसलिए इसके लिए थीटा 0 होगा. L के लिए थीटा 0 होगा. So since line L is horizontal, it makes 0 degree. It makes 0. So slope therefore for L, for horizontal, here L is horizontal. इसलिए सीधा मैं लिख रहा हूँ. It makes 0 degree. It makes 0 radian. तो 0 एंगल बनाएगा with positive direction of x axis. तो थीटा 0 होगा. तो slope of L जो m होता है वो कितना आएगा? tan थीटा. Therefore slope of L जो है m वो कितना आएगा? tan 0. tan 0 क्या होता है? 0. Therefore slope of L कितना आया? m 0. तो उसका मतलब यहाँ पे भी वही आता है. इस डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन में डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखा है? ये टॉपिक क्लियर उसके पहले. सपोज अ लाइन L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. So slope of the line is given by m is equal to tan theta, where 0 less than equal to theta less than pi, theta cannot be pi by 2. ये हो गया. अब मैंने पहला केस रखा. लाइन L क्या हो सकती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, neither horizontal nor vertical. पहला केस लाइन L is horizontal, y axis, x axis. L horizontal है मतलब वो perpendicular to y axis होगा. तो obviously L कितना एंगल बनाएगा with positive direction of x axis? 0. So theta will be 0. L is horizontal, theta is 0. So slope of L is tan theta. 0 आया. कहने का मतलब slope of line L horizontal है, इसलिए उसका slope क्या आया? 0. इस definition से हम क्या conclude कर सकते हैं कि slope of a horizontal line is 0. इस definition में भी वो result true hold करता है. तो लिखो slope of a horizontal line is 0. Easily understood. Therefore slope of, this is not given in the textbook. मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो. तो ये याद रखो आप लोग. रिजल्ट स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0. सेकंड केस आप कंसीडर करो. लाइन L इज वर्टिकल. सेकंड केस में जो लाइन L है, लाइन L इज मेकिंग थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अब पहला केस मैंने आपको बता दिया कि लाइन L इज हॉरिजॉन्टल. सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड केस में लाइन L is vertical. What is a vertical line? Vertical line is a line. Vertical line is a line perpendicular to. Vertical line is a line perpendicular to what? X axis. तो और vertical line can be y axis और a line parallel to y axis. तो यहाँ पे हमारी L vertical है तो L ऐसी भी हो सकती है इधर perpendicular to x axis. फिर यहाँ पे भी L हो सकती है और vertical line can be y axis also. So L can be मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. तो L can be y axis also. अब अगर L vertical line है तो कोई भी vertical line कितना एंगल बनाती है? Vertical line is always perpendicular to x axis. So angle made by vertical line L with positive direction of x axis in anti-clockwise direction, ये
थीटा कितना होगा, ये थीटा होगा 90 डिग्री पाई बाय 2, तो ये थीटा कितना होगा L के लिए पाई बाय 2, ये थीटा कितना होगा, since it is perpendicular this theta means angle made by L with positive direction of x axis कितना होगा पाई बाय 2, so here L is vertical, therefore थीटा कितना होगा, थीटा होगा पाई बाय 2, थीटा होगा पाई बाय 2, since थीटा is पाई बाय 2 उसका स्लोप निकालो, therefore स्लोप ऑफ L, उसका फॉर्मूला क्या था, L is equal to tan थीटा, तो स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan ऑफ पाई बाय 2, tan ऑफ पाई बाय 2 is tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री is undefined, तो स्लोप इज द स्लोप कितना आएगा undefined, so slope of L which is m, slope of L उसका सिंबल m which is tan of pi by 2, और tan of pi by 2 undefined होता है, so slope of L जो m है वो आएगा undefined, और हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर लाइन वर्टिकल है उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, उल्टा अगर अनडिफाइंड है तो वो लाइन वर्टिकल होगी, अगर कोई लाइन L वर्टिकल है उसका स्लोप अनडिफाइंड आना चाहिए, उल्टा अगर लाइन L का स्लोप अनडिफाइंड है तो वर्टिकल होगी, तो मैंने इस डेफिनेशन से भी क्या प्रूव किया कि L इज वर्टिकल तो थीटा पाई बाय 2, सो m इज tan पाई बाय 2, तो स्लोप अनडिफाइंड आया, सो आप लोग क्या रिजल्ट याद रखोगे कि slope of a vertical line is undefined, slope of a vertical line is undefined। अब नेक्स्ट केस क्या आएगा, अब ये रिजल्ट अब हम क्या लिखेंगे, slope of a vertical line is undefined, so therefore आपको याद रखना है slope of a vertical line is undefined। ये क्या हो गया आपको अच्छे तरीके से, अब देखो वो सारी चीजें मैंने क्यों लिखी है डिटेल में, क्योंकि वो सारी चीजें कनेक्टेड है, काफी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, कुछ चीजें उन्होंने प्रिज्यूम की है और कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है, एंड आई एम नॉट गोइंग विद सम डेरिवेशंस एंड ऑल बिकॉज़ द डेरिवेशन विल क्रिएट कंफ्यूजन इन यू, और आप लोग क्या रिजल्ट याद रखना है वो आपको समझ में नहीं आएगा, सो आई विल गिव यू ओनली द थियोरेटिकल पॉइंट्स व्हिच आर नीडेड, और उसके बेस पे मैं सारे एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा, तो आपको पता भी चलेगा कि कौन सी थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। लाइन तीन प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल स्लैंट लाइन। तो तीसरी लाइन L इज वर्टिकल लाइन इज BL, B dot L, horizontal line is HL, so line L is neither horizontal nor vertical, मतलब वो कैसी लाइन है, NHLB। ओके, तो अब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करो, इट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, मतलब वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं होगी, सो इट कैन नॉट बी parallel to x axis, it cannot be parallel to y axis, it cannot be x axis, it cannot be y axis, ठीक है, तो it will be a slant line like this, okay, तो suppose वो लाइन कैसी है, suppose this is L, suppose this is L, और हाँ ओरिजिन से भी हम बता सकते हैं पास होती हुई लाइन, सपोज किसी को डाउट है कि सर थीटा कैसे इसका होगा, ये L होगा, तो अब ये जो L है ये केस में L है, इस केस में L है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस आर टुवर्ड्स राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा, यहाँ पे ये आएगा पूरा थीटा, और इस लाइन के लिए टुवर्ड्स राइट ये आएगा थीटा, और हाँ ये परपेंडिकुलर होती है पासिंग टू ओरिजिन, सो यहाँ पे लिखा है O 0 0, और यहाँ पे इस लाइन के लिए मैं L इधर लिखूंगा, so here line L is neither horizontal nor vertical, is neither horizontal, is NHNV, okay, is NHNV, horizontal नहीं है और vertical नहीं है, तो therefore let slope, मैं वैल्यू देता हूँ, let slope of L is equal to M, vertical नहीं है, so therefore slope M exists, मतलब वो डिफाइंड है, exist मतलब slope M is defined because non-vertical है, और दूसरा उसका slope
m कितना आएगा, स्लोप m is not equal to 0 because it is neither horizontal, so non horizontal, ठीक है। तो इसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा, इसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा, इसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन जीरो होगा। देयरफॉर इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ l, स्लोप ऑफ l हम कैसे निकालेंगे, m is equal to tan theta, slope m is equal to tan theta। I hope I'm clear। So therefore m is equal to tan theta आएगा, पर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, थीटा जीरो नहीं हो सकता, m is slope is not equal to 0, slope is not equal to 0, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए वो जीरो एंगल नहीं बनाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो थीटा जब लाइन l नाइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप कैसे आएगा, m is equal to tan theta। एग्री। थीटा के बारे में कंडीशन क्या है, थीटा पाई बाय 2 तो नहीं होगा क्योंकि वो वर्टिकल नहीं है, और थीटा जीरो नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई एंड थीटा आल्सो नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। हॉरिजॉन्टल होती तो थीटा, हॉरिजॉन्टल होती तो थीटा जीरो आता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है फिर थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इक्वल टू हटा दिया, और वर्टिकल नहीं है इससे पाई बाय 2 आने का सवाल ही नहीं है। सो स्लोप m is equal to tan theta, 0 less than theta less than pi। So that is the condition for line is neither horizontal nor vertical। अब क्या है, तो slope of neither horizontal nor vertical line is a non-zero real number। और ये कैसा आएगा, जीरो नहीं होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा, स्लोप एग्जिस्ट करेगा और स्लोप नॉन जीरो होगा, मतलब m कितना होगा, m belongs to r minus 0, m belongs to r minus 0। so as for here m belongs to r minus 0 and for neither horizontal, for NHNV, for neither horizontal nor vertical line L, slope is m is tan theta। तो here 0 less than theta less than pi and theta not equal to pi by 2, therefore we can write theta belongs to 0 to pi minus that difference pi by 2 ऐसा लिख सकते हैं। और here वो जो स्लोप है वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा, so m belongs to r minus 0। so slope of a horizontal non-vertical line is a non-zero real number। that is clear, very अच्छे तरीके से। अब इसमें हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इधर हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कैसा है, नॉन जीरो रियल नंबर, स्लोप ऑफ neither horizontal nor vertical line is slope of, therefore slope of, क्या रिजल्ट पे हम पहुंचे, slope of neither horizontal nor vertical line L is a non-zero real number, is a non-zero real number। ओके, तो उसका मतलब क्या, स्लोप क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और स्लोप क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी होगी और थीटा क्या होगा वो देखते हैं। सेकेंड केस, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप तो नॉन जीरो रियल नंबर है, सिंस स्लोप इज नॉन जीरो रियल नंबर, क्या होगा, सिंस स्लोप इज नॉन जीरो रियल नंबर, since slope is non-zero real number, since the slope is non-zero real number, तो हम क्या कह सकते हैं, since the slope of the line is non-zero real number, slope can be positive, slope can be negative, तो उस केस में थीटा क्या होगा वो जरा हम देखते हैं। Here ये रखना है, suppose line L is neither horizontal nor vertical, और दूसरा line L makes an angle of measure theta with positive x axis है, positive direction of x axis मतलब towards right in, anti-clockwise direction in,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो स्लोप क्या हो, स्लोप इसका स्लोप ऑफ एल तो क्या है, एल इज इक्वल टू tan थीटा और हियर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, थीटा cannot be pi by 2, therefore theta belongs to 0 to pi minus pi by 2। और हाँ ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा क्योंकि वो नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल है, so m belongs to r minus 0, so m can be positive, m can be negative। ये ऐसे याद रखना पड़ता है, ये जितनी बार आप लिखोगे अच्छी तरीके से ये थियरी और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, तो फिर ये चैप्टर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को थियरी याद नहीं रहती, फिर वो भूल जाते हैं और वो रिकॉल करने के लिए फिर रट्टा मारते हैं, फिर बोलते हैं भूल गए। सी दैट इज नॉट द वे, अच्छे तरीके से याद रखो। और फर्स्ट केस क्या होगा, तो फर्स्ट केस थीटा किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में, 0 थीटा पाई बाय 2 नहीं है, तो उसका मतलब थीटा पाई बाय 2 नहीं है, 0 और पाई के बीच में। तो फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, y एक्सिस ड्रॉ करो, x एक्सिस ड्रॉ करो, x एक्सिस और y एक्सिस आप ड्रॉ करो। और पहले केस में देखो कि क्या होगा। पहला केस हियर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई है, थीटा कैन नॉट बी पाई बाय 2, सो दो केस होंगे। देयरफॉर एक पहले मैं लिख देता हूं, ओके। सो देयरफॉर यहां पे स्लोप कैसा आएगा, r minus 0, so m can be positive or m can be negative। और थीटा कहां बिलोंग करेगा, therefore 0 less than theta less than pi, theta cannot be pi by 2, therefore theta belongs to कहां पे, 0 to pi minus pi by 2। तो दो केस जाएंगे, थीटा 0 और pi by 2 के बीच में भी हो सकता है, एक्यूट एंगल और pi by 2 से pi के ऑब्टूज एंगल हो सकता है। फर्स्ट केस में क्या रखता हूं, 0 लेस देन थीटा लेस देन pi by 2। फर्स्ट केस में रखता हूं 0 लेस देन थीटा लेस देन pi by 2 और pi by 2 लेस देन थीटा लेस देन pi। ये तो केस में क्या होगा, l का स्लोप क्या होगा वो जरा देखते हैं। तो यहां पे थीटा इज एक्यूट, तो स्लोप क्या है, जरा सोचो, x डैश x y डैश, थीटा इज एक्यूट, तो कैसे लेना नीचे, ऐसी या ऐसी, इट शुड बी लाइक दिस, सो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी अगेन इफ इट इज हियर इट कैन बी लाइक दिस, ओके। एग्जैक्ट उसको पैरेलल तो नहीं होती है हमेशा, मतलब इट कैन बी, सपोज यू कैन थिंक लाइक दिस, इट कैन बी L, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो। तो ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा एक्यूट है। पासिंग टू ओरिजिन भी आप समझ गए, वो तो बता चुका हूं। therefore here as 0 less than theta less than pi by 2, theta is acute here, theta is acute, okay। slope 0 less than theta less than pi by 2, so therefore यहाँ पे क्या है, 0 less than theta less than pi by 2, तो slope of L जो है m, so therefore m is equal to tan theta, 0 less than theta less than pi by 2, therefore theta is acute, and in first quadrant में tan और theta के साथ होता है पॉजिटिव, so tan theta is greater than 0, therefore m जो m which is the slope, m is tan theta is greater than 0, therefore m is tan theta is greater than 0 for 0 less than theta less than pi by 2। इसका मतलब स्लोप कैसा आया, m is positive for 0 less than theta less than pi by 2। उसका मतलब अगर कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, so slope of the line will be positive, slope of that line will be positive, so ये आपको याद रखना है। therefore slope of the line is positive because the line makes acute angle with positive direction of x axis, okay। so it is 0 less than theta less than pi by 2, theta is acute angle, understood, very simple। सेकंड केस में क्या रखेंगे, थीटा ऑब्ट्यूज है, pi by 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, तो उसका मतलब
थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। पहले स्लोप के बारे में कर लेते हैं, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, तो उसका स्लोप ऑफ एल कितना है? एल, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या है? एल क्या है? tan थीटा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई बाय 2 पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। सो tan नेगेटिव, उसका मतलब क्या? स्लोप भी नेगेटिव। उसका मतलब अगर लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाला लाइन, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये ऐसे याद हो जाता है। स्लोप ऑफ लाइन एल कितना है? m, देयरफॉर m कितना है? tan थीटा। नाउ हियर pi by 2 less than theta less than pi, so theta is in second quadrant। second quadrant में tan कैसा होता है? नेगेटिव। so tan theta is less than 0, therefore m is equal to tan theta is less than 0, so therefore क्या आया? therefore m is less than 0, therefore m is less than 0 for pi by 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो क्या पता चला कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव फॉर पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। मतलब अगर लाइन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। और अगर उसका आपको डायग्राम सोचना है तो मैंने डायग्राम इसलिए बात में ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज़ आई वांट यू टू ड्रॉ कि कैसे होगा ना। सोचो उसके लिए डायग्राम कैसे होगा, लाइन कैसे हो सकती है अगर हम उसको प्लॉट करें x एक्सिस और y एक्सिस में। x डैश y डैश ऐसी आएगी कि ऐसे, इट विल बी लाइक दिस। सपोज दिस इज द l, दिस इज l, सपोज दिस इज l। इट कैन पास थ्रू origin also, not a big deal, okay? So this is the line l और it is making obtuse angle here for L, here pi by 2 for L। condition क्या है? pi by 2 less than theta less than pi, means the line is making obtuse angle theta with positive direction of x axis। so obviously you know this is theta, this will be theta, that is understood। और ये pi by 2 x की लाइन आएगी 90 करो परपेंडिकुलर, 90 ज्यादा होना चाहिए, 90 ऐसे है। दैट्स इट, अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कभी ऐसे एमसीक्यू आते हैं, कभी कभी जेईई मेंस में या एंट्रेंस एग्जाम ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ वेरियस यू कैन से एक्सीलेंट कॉलेजेस, आपको एक बड़ा सम दिया होगा और उस बड़े सम में ऐसा होगा कि आप स्लोप निकालोगे और फिर उसके बाद ऑप्शन में होगा कि द लाइन इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द लाइन इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने का, और आप स्लोप निकालोगे बड़ा सा एक्स होगा और फिर स्लोप निकालना होगा उस लाइन का, और फिर आपको क्या मिलेगा? सिंगल स्लोप इज नेगेटिव, वो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना पड़ेगा? द लाइन इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लोप ऑफ लाइन का दूसरा डेफिनेशन मैंने दिया कि अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ मोशन थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन स्लोप ऑफ द लाइन l is equal to tan थीटा, जहां पे 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2। और वर्टिकल लाइन में स्लोप अनडिफाइंड आया इस डेफिनेशन से, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 आया इस डेफिनेशन से, और नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन का स्लोप आया नॉन जीरो इस डेफिनेशन से, जो पिछला मैंने आपको सिखाया था उसके साथ मैच करता है। अब गिव द हेडिंग के conditions for two lines to be parallel, conditions for two lines to be parallel, सीधा आपको याद रखना है condition for two lines to be parallel, condition for two lines to be parallel, ठीक है? condition for two lines to be
पैरेलल। सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज टू पैरेलल लाइंस आर L1 and L2, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं L1 और L2। Here L1 is parallel to L2। M1 है उसका, let M1 is slope of L1, स्लोप निकालेंगे सम के द्वारा M2 कोई भी मेथड से, स्लोप ऑफ L2, और L1 और L2 कैसे हैं? पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आपको याद रखना है कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। तो हियर यहां पे आपको क्या याद रखना है? L1 is parallel to L2, ये गिवन है, तो रिजल्ट आपको क्या याद रखना है? therefore M1 is equal to M2, M1 is equal to M2। आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि if L1 parallel to L2 then M1 is equal to M2। ये आपको याद रखना है। What is the condition for two lines to be parallel? If two lines are parallel, then their slopes are equal। ये आपको याद रखना है। If two lines are equal, L1 और L2 two parallel lines है, और M1 is slope of L1, M2 is slope of L2, तो आपको याद रखना है कि then M1 is equal to M2। तो आप सीधा क्या याद रखोगे? अब सीधा एक स्टेटमेंट क्या याद रखोगे कि slopes of two parallel lines are equal। Slopes, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। Slopes of two parallel lines are equal। Slopes of two parallel lines are equal। If L1 is parallel to L2, then if L1 is parallel to L2, then M1 is equal to M2। अब M1 क्या है? Slope of L1। M2 क्या है? Slope of L2। और slope किसके लिए एग्जिस्ट करता है? स्लोप किसके लिए एग्जिस्ट करता है? तो मैं क्या रखूंगा कि if L1, if two lines are parallel, so if L1 is parallel to L2, then M1 is equal to M2। It's obvious, L1 और L2 two parallel lines है, और M1 is slope of L1, M2 is slope of L2, so M1 is equal to M2। अब इधर M1 और M2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं जब वो पैरेलल लाइंस की बात करूंगा तो वो दो लाइंस कैसी होनी चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये दोनों पैरेलल लाइंस वर्टिकल हो सकती है, हाँ तो दो वर्टिकल लाइंस पैरेलल होती है, पर वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे हमको ये जो पैरेलल लाइंस है, L1 का स्लोप M1 मिल रहा है, L2 का स्लोप M2 मिल रहा है। सो हियर L1 and L2 आर नॉन वर्टिकल। क्यों नॉन वर्टिकल लाइंस? क्योंकि अगर ये दोनों वर्टिकल होती तो पैरेलल होती, इट्स ऑब्वियस, पर उनका स्लोप नहीं मिलता, तो ये थ्योरी यूज नहीं कर सकते। ये थ्योरी कब यूज कर सकते हैं? जब अगर दो लाइंस कैसी होनी चाहिए? नॉन वर्टिकल। तो बोले सर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ना, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती है? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल होती है, और तब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? एग्जिस्ट करता है कितना? 0। यस, तो पहले L1 का स्लोप M1 0 आएगा, और अगर L1 हॉरिजॉन्टल और L2 हॉरिजॉन्टल, तो M1 का स्लोप 0 आएगा, L2 का स्लोप 0 आएगा, तो M1 इक्वल टू M2 होल्ड करता है। सो L1 और L2 आर नॉन वर्टिकल। इस थ्योरी के लिए ये आपको याद रखना है, और आपको नोट याद रखना है कि two distinct horizontal lines are always parallel। So this और सेम लॉजिक इसके लिए कि two distinct vertical lines are always parallel। two distinct vertical lines are always parallel। It's understood, it's very clear। अच्छी तरीके से। ओके, स्पेशल केस, दो लाइंस पैरेलल हो गई, उसकी कंडीशन हो गई, स्लोप लाइन हो गया। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, उसके लिए कंडीशन फॉर two lines to be perpendicular। condition for two lines to be perpendicular। ओके, क्या कंडीशन वही रखेंगे कि सपोज ओके, और हाँ ये L1 पैरेलल टू L2 था, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे if L1
So if L1 is equal to L2, then M1 is equal to M2. तो उसमें वो दो लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, मतलब दिस केस इज पॉसिबल। ये L1 L2 ऐसा भी केस हो सकता है, एक डायग्राम हो सकता है सेकंड केस में है, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। तो ये L1 है, x एक्सिस और y एक्सिस में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इट्स अंडरस्टूड। और ये पैरेलल लाइंस, मतलब रो के ऊपर के सारे एंगल थीटा 1 थीटा 2 एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब पे हमको नहीं जाना है। कैसे स्लोप निकालेंगे? स्लोप निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होगा? अगर लाइन के दो पॉइंट्स पता होंगे तो डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, सॉरी डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स टेकन इन सेम ऑर्डर से हम स्लोप निकालेंगे। अगर लाइन थीटा बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो वहां से स्लोप निकालेंगे। सो ये याद रखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन फॉर two lines to be perpendicular, condition for two lines to be perpendicular, ये दूसरी थियरी आपको याद रखनी है, सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है और समझना है। क्या दो लाइंस कौन सी रखेंगे? लेट L1 and L2 be two perpendicular lines, obviously मतलब डिस्टिंक्ट अलग ही होगी, two perpendicular lines, therefore L1 is, यहाँ पे L1 is perpendicular to L2। L1 का स्लोप क्या रखेंगे? M1 is slope of L1 और M2 is slope of L2 रखेंगे। M1 is slope of L1, M2 is slope of L2। तो अगर L1 is perpendicular to L2, M1 में स्लोप निकालूंगा L1 का, M2 में निकालूंगा स्लोप ऑफ L2, तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा? अगर L1 is perpendicular to L2, if L1 is perpendicular to L2, then आपको क्या मिलेगा? आप L1 is perpendicular to L2 अगर होगा, L1 का स्लोप M1 निकालो, L2 का स्लोप M2 निकालो, और अगर आप M1 और M2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 मिलेगा, तो आपको -1 मिलेगा। if L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is -1। मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। क्या? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस is equal to -1। ये आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। ओके, मतलब यहाँ पे L1 और L2 दो लाइंस हैं और वो दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर। L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M2, और यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। Here L1 is perpendicular to here L1 is perpendicular to L2 था, therefore M1 into M2 is -1। और ये स्टेटमेंट के पहले अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि if L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is -1। कहने का मतलब क्या है? ये क्या है? ये स्लोप का प्रोडक्ट है, इसके दो परपेंडिकुलर लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। ठीक, अब यहां पे L1 और L2 परपेंडिकुलर है, एग्री। M1 क्या है? स्लोप ऑफ L1। L2 क्या है? स्लोप ऑफ L2। पर इधर कोई बोलेगा सर L1 और L2 कैसे टाइप की लाइंस हो? अगर आपको पता हो हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, तो अगर L1 perpendicular to L2 है, then M1 into M2 is equal to -1, agree। पर here L1 और L2 कैसे होंगे? एक वर्टिकल, अगर L1 वर्टिकल है तो उसका स्लोप कौन डिफाइंड होगा? M1 मिलेगा नहीं, और L2 अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 मिलेगा। एक अनडिफाइंड और एक 0, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर L1 वर्टिकल है और L2 हॉरिजॉन्टल है, L1 का स्लोप वर्टिकल होती तो L1 और L2 परपेंडिकुलर होती, पर L1 वर्टिकल है तो M1 अनडिफाइंड आएगा, M2 0 आएगा, तब M1 into M2 इक्वल टू -1 होल्ड नहीं करेगा। सेम लॉजिक L2 को आप L1 को हॉरिजॉन्टल ले लो और L2 को वर्टिकल ले लो। कहने का मतलब क्या है कि फॉर
if L1 is perpendicular to L2, then L1 and L2 is equal to -1. So here L1 and L2, here L1 and L2 are both neither horizontal nor vertical. मतलब वो neither horizontal और nor vertical होंगे, दोनों का स्लोप एग्जिस्ट करेगा, M1 और M2 एग्जिस्ट करेगा, M1 और M2 दोनों नॉन जीरो होंगे और फिर L1 परपेंडिकुलर टू L2 पे M1 into M2 -1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो स्टेटमेंट्स, if L1 perpendicular to L2, if two lines L1 and L2 are perpendicular, then दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट then M1 into M2 is -1. दूसरा, if M1 into M2 is -1, if product of slopes is -1, then definitely those two lines are perpendicular. और दूसरा हमको याद रखना है कि यहाँ पे L1 और L2 neither horizontal nor vertical, और फिर हमको याद रखना है और फिर let L1 perpendicular to L2, तो उसका मतलब M1 into M2 कितना आएगा -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज -1. तो इसमें से मुझे M1 कैसे मिलेगा -1 अपॉन M2 और M2 कैसे मिलेगा -1 अपॉन M1. कहने का मतलब क्या है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और अगर मुझे M1 पता है तो मुझे M2 कैसे मिलेगा, M1 का रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई करना है. अगर मुझे L1 और L2 परपेंडिकुलरली पता है और M2 पता है तो M1 कैसे मिलेगा -1 अपॉन M2. कहने का मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर है और किसी एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई. दैट यू विल अंडरस्टैंड. पर ये 3 पॉइंट्स से याद रखो. और अब सो दैट फिनिशेस द टॉपिक ऑफ condition for two lines to be parallel, condition for two lines to be perpendicular. और हाँ, perpendicular lines में इतना याद रखने का कि horizontal line is always perpendicular to vertical line. Horizontal line is always perpendicular to vertical line. Okay? तो अगर आपको याद रखना है कि for L1 perpendicular to L2, if L1 is horizontal, अगर L1 horizontal है then L2 क्या होनी चाहिए, L2 is vertical obviously for sure. और दूसरा, अगर for L1 perpendicular to L2, if L1 is vertical then L2 क्या होनी चाहिए, then L2 is horizontal. It must be horizontal. It's understood. अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है और उसमें L1 वर्टिकल है तो L2 क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल. और L1 परपेंडिकुलर टू L2 में L1 अगर हॉरिजॉन्टल है तो L2 क्या होनी चाहिए, वर्टिकल. और ये क्यों रीजन, बिकॉज़ ये दोनों चीजें क्यों, बिकॉज़ a horizontal line is perpendicular to a vertical line. Is perpendicular to a vertical line. Finished the reason. Now, angle between two lines. Give the heading angle between two lines. Just 1 minute before starting this topic. आप रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स and then I will start the next topic. Ready? Angle between two lines. So the next topic is angle between two lines. Okay. So angle between two intersecting lines. Next topic is slope of a line done. Two coordinates are given. Okay. Now angle between two lines. Okay. Okay. Angle between two intersecting lines. Angle between two intersecting lines. क्या केस हो सकता है, दो intersecting lines कैसे होंगे. Suppose दो lines, first case, suppose L1 and L2 are
टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो कैसी हो सकती है 2D में? वो कैसी हो सकती है 2D में? लाइंस कैसी हो सकती है 2D में? लाइंस या तो इंटरसेक्ट पैरेलल भी हो सकती है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हो सकती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस या परपेंडिकुलर भी हो सकती है या तो परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे L1 और L2 कैसी है? परपेंडिकुलर। L1 और L2 कैसी लाइंस है? यहाँ पे L1 और L2 टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला केस L1 and L2 are perpendicular to each other, इसका मतलब L1 is perpendicular to L2। उसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं 2D में, डोंट थिंक दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। खाली ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसा भी प्रिंट करके भी आप सोच सकते हो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ऐसा नहीं है। खाली ऐसा मैंने बताया कि L1 और L2 दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो ऑल द फोर एंगल्स फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स जो फॉर्म होंगे वो 90 डिग्री, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। कहने का मतलब ये L1 is perpendicular to L2, so all four angles form at point of intersection of L1 and L2 are right angles। So उसका मतलब एंगल बिटवीन L1 और L2 जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तब कितना होगा? π/2 मतलब 90 डिग्री। रेडियन में प्रिफर करने का आंसर लिखने का, ओके? एंगल व्हिच यू मस्ट राइट इन योर एग्जाम इन आंसर मस्ट बी इन रेडियंस। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन L1 और L2 कितना होगा? सो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 का कितना होगा? π/2, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। दैट यू कैन थिंक एज 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर। सेकंड केस, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, सेकंड केस में L1 and L2 are not perpendicular, L1 and L2 are not perpendicular to each other। मैं जैसे ऐसे डायग्राम बनाया कि L1 और L2 परपेंडिकुलर नहीं है, okay, this is L1, this is L2, and suppose this is the angle, this angle इन दोनों के बीच में suppose this is say 60 डिग्री। so ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये परपेंडिकुलर नहीं है, अंडरस्टैंड? the two lines are not perpendicular, तो क्या होगा? two lines are not perpendicular at the point of intersection जो चार एंगल फॉर्म होंगे, तो कैसे होंगे वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब सपोज ये एंगल 60 है, तो 60 के सामने ये एंगल कितना होगा? 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 60 हो गया, ओके, 60 ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये 60 डिग्री तो ये कितना? 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री। अब ये जो एंगल है 120 डिग्री, तो उसके सामने ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री। तो इफ टू लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, तो जो चार एंगल्स फॉर्म होते हैं उसमें हमको क्या मिलता है? वी विल गेट 60 डिग्री मतलब वन पेयर ऑफ एक्यूट एंगल्स और 120 डिग्री इस एग्जांपल के लिए मतलब वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो क्या क्या रखेंगे कि when two lines are not perpendicular to each other, when two lines are not perpendicular to each other, when two lines here L1 is not perpendicular to L2, so we get one pair of acute angles, and another pair of obtuse angles. We get one pair of acute angle and one pair of obtuse angle at
So 99.9% we have to give the answer of the acute angle. So we get one pair of acute angle and another pair of obtuse angle at the point of intersection of L1 and L2. तो आपको याद रखना है इस केस में एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इस डायग्राम के लिए क्या होगा 60 डिग्री। हम लोग acute angle कंसीडर करेंगे। We will consider the acute angle between the two lines. We will consider and we will select acute angle. We will select acute angle as angle between L1 L1 and L2। तो उसका मतलब उस डायग्राम के लिए इस डायग्राम के लिए व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन L1 and L2 इस डायग्राम के लिए। तो इस डायग्राम में एंगल बिटवीन L1 and L2 क्या आएगा 60 डिग्री। एंगल बिटवीन L1 and L2 क्या आएगा 60। ठीक है, ऐसा तो मैंने रफ डायग्राम बनाया। थियोरेटिकल इसको कैसे लिखना है, इसको थियोरेटिकल कैसे लिखना है। तो पहले L1 is not perpendicular to L2, L1 is not perpendicular to L2, so L1 is not perpendicular to L2। मैंने पहले डायग्राम से ऐसे समझाया और कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। अब क्या थियरी है, आप लिखो कि सपोज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर क्या बनेंगे, सपोज here L1 and L2 are two intersecting lines and L1 is not perpendicular to L2। ओके, अब इस केस में हम लोग एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमको ढूंढना है। तो उसके लिए L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है और दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। लेट M1 is equal to slope of let M1 is equal to slope of L1। पहले लाइन का स्लोप L1 का स्लोप M1 रखो, L2 का स्लोप M2 रखो और सिंस ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मैं उसका एक यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। ओके ये दो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग एंड दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो दे विल फॉर्म फोर एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। L1 है यहां पे और ये L2 और M1 क्या है, स्लोप ऑफ L1। अब याद रखो L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं है। लेट और M1 here M1 is slope of L1 और दूसरा M2 is slope of L2। ठीक है, मैंने उसका एक ऐसा डायग्राम बनाया। मतलब जो फोर एंगल्स बनेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल द फोर एंगल्स विल नॉट बी राइट एंगल्स। We will get one pair of acute, we will get one pair of obtuse angles at the point of intersection। तो वो ड्रॉप कर ऐसा है कि मैंने वो 60 डिग्री और 120 डिग्री का जैसा डायग्राम दिया था। ओके, so this is L1, this is L2, they are not perpendicular, so we get one pair of acute angles and one pair of obtuse angles। Don't you think this will be acute angle? Suppose acute angle alpha है, L1 और L2 के बीच का acute angle alpha है और L1 और L2 के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल थीटा है। L1 और L2 के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल थीटा है, तो मैं अल्फा रखता हूं, थीटा रखा है। लेट अल्फा इज एक्यूट एंगल बिटवीन L1 and L2। थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 and L2। और हमारे सिलेबस में we are interested to find the acute angle between the two intersecting lines L1 और L2 कौन सा होता है, always acute angle। तो हम लोग अल्फा ढूंढेंगे, बीटा ढूंढेंगे, हम अल्फा ढूंढेंगे। तो वो अल्फा कैसे ढूंढेंगे,
उसका फॉर्मूला ऐसे दिया है, L1 और L2 परपेंडिकुलर देंगे, M1 स्लोप ऑफ L1 है, M2 स्लोप ऑफ L2 है, अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 and L2, बीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 and L2। तो अल्फा ढूंढने का फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ M1 minus M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। और यहाँ पे अल्फा एक्यूट है, इसके लिए 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2। इट्स ऑब्वियस मॉडुलस है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर L1 और L2 टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, M1 is slope of L1, M2 is slope of L2, then since they are not perpendicular, we will get one pair of acute angle alpha and one pair of obtuse angle theta between L1 and L2 at the point of intersection। तो जो acute angle alpha है between L1 और L2, उसको ढूंढने का फॉर्मूला using the slopes M1 and M2 of L1 and L2 is tan alpha is mod of M1 minus M2 upon 1 plus M1 and M2। Let alpha क्या रखने का, let alpha be the acute angle L1 and L2, क्या रखने का, L1 and L2 are two intersecting lines, L1 and L2 are not perpendicular, M1 is slope of L1, M2 is slope of L2, alpha is the acute angle between L1 and L2। then alpha ढूंढने का फॉर्मूला tan alpha is mod of M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2। ये आपको याद रखना है। It's better I have written twice, आप 3 से 4 बार को, ये हो गया फॉर्मूला, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। और हाँ, अब काफी टाइम में कभी-कभी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है या कभी-कभी स्कूल के एग्जाम में समटाइम्स द टीचर उधर करके कोई बाहर का क्वेश्चन दे दे, आपको L1 आपको M1 निकालोगे आप अपने तरीके से, फिर गिवन डेटा सम में से गिवन डेटा जो सम होगा उसमें से आप L1 लाइन में से M1 निकालोगे, L2 लाइन में से आप M2 निकालोगे और फिर आप tan अल्फा निकालोगे, tan अल्फा इज mod M1 minus M2, ये फॉर्मूला निकाल के आप अल्फा निकाल दोगे। पर अगर टेक्स्ट बुक जो प्रूव दैट क्वेश्चन है उसमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस एक्यूट एंगल नहीं दिया है, तो क्या होगा, एक्यूट एंगल अगर नहीं दिया है तो ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर कर लेगा। अल्फा मिल गया, अदर एंगल आप ऐसा निकाल सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल बीटा या थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 और L2 कैसे मिलेगा, पाई माइनस अल्फा, दैट थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। सिंपल, एक अल्फा है, थीटा एक्यूट है, तो अरे अल्फा एक्यूट एंगल है बिटवीन L1 और L2, तो थीटा जो ऑब्ट्यूज एंगल है बिटवीन L1 और L2 वो कैसे मिलेगा, पाई माइनस अल्फा, थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा, दैट इज थीटा विल बी, यू कैन अगेन राइट 180 डिग्री माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा यूज करना है तो अल्फा रेडियन में होना चाहिए, so therefore theta pi minus alpha अगर मैं यूज करता हूं तो अल्फा 0 और पाई बाय 2 के बीच में, ऐसा मतलब पाई बाय 3 हो सकता है, पाई बाय 6 हो सकता है, पाई बाय 4 हो सकता है। और अगर हम लोग डिग्री में आंसर देते हैं तो फिर दैट इज, अगर मैं लिखता हूं थीटा इज पाई माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहां पे अल्फा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ऐसे हमको ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 और L2 मिल जाएगा। That finishes, I believe, all theoretical points. That finishes all the theoretical points. That finishes all the theoretical points needed for exercise 10.1। वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर, उसके पहले अगर मुझे पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं तो कौन कौन से मेथड्स थी, अगर मुझे पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं, अगर मुझे पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए पहला मेथड सबसे इजी जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया और हमने 3D में भी किया वो था यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। क्या करने का, ax y का bx y और cx dy दिया होगा, ab ढूंढो, bc ढूंढो, ac ढूंढो डिस्टेंस फार्मूला से, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस जो कि इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, तो वो क्या हो गया कोलिनियर। पर कल मैंने आपको सिखाया कि ax y पर bx y cx dy है तो d निकालेगा, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, अगर वो d 0 आया तो पॉइंट्स कोलिनियर। पर और एक थियरी भी है, और एक थियरी भी है जहां पे, और एक थियरी भी है जहां पे अगर स्लोप्स से हमको करना है, स्लोप से हमको करना है तो क्या करेंगे कि सपोज कंसीडर, सपोज A, B, C are three
collinear points are three collinear points on line L. क्या रखना है? सपोज A B C are three collinear points on a line L. तो क्या होगा? सपोज वो लाइन L पे, एक लाइन L पे ये तीन पॉइंट्स है, collinear है मतलब एक ही लाइन पे है, तो A B और C. क्या रखना है? स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट. स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L आप किसी भी दो पॉइंट का यूज करके निकालो. आप स्लोप ऑफ लाइन L A और B के कोऑर्डिनेट्स, B और C के कोऑर्डिनेट्स, A और C के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप निकाल सकते हो. तो स्लोप ऑफ लाइन L इज कांस्टेंट. उस लॉजिक से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा कि स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB will be equal to slope of BC. Slope of line AB is equal to slope of BC. Therefore, slope of line AB will be equal to slope of line AC. So here L क्या है? Can I write L is, therefore line L is nothing but line AB और BC भी लिख सकते हैं या CB या AC या C. Slope of AB is equal to slope of BC, which will be equal to slope of AC line. ठीक है, अगर ABC के collinear points हैं तो they are on line और यहाँ पे ABC are on line L, so therefore A belongs to L, B belongs to L, C belongs to L. ABC एक लाइन पे है, तो लाइन L को मैं AB, BC और AC लिख सकता हूँ. स्लोप ऑफ लाइन L इज कांस्टेंट. लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता है. कोई भी दो पॉइंट का यूज करके, किसी भी दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप स्लोप ऑफ लाइन निकालो. स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB will be equal to slope of line BC, which will be equal to slope of line AC. इतना आपको याद रखना है. अगर ABC तीन collinear points हैं तो स्लोप ऑफ AB will be equal to slope of BC will be equal to slope of BC for three collinear points A, B, C. ये अच्छे तरीके से आप याद रख लो. Now let me do two questions if they are the time for just 1 minute. Okay, so let me do few illustrations. Example 1, एक ABC को हम कर चुके हैं. Let us do the D part. Find the slope of a line making inclination of 60 degree with positive direction of x-axis, obviously in anti-clockwise direction. Obviously in anti-clockwise direction. तो कैसे करेंगे? Find the slope of a line making the inclination of 60 degree with positive direction of x-axis. Suppose L makes line L है. Suppose हमारी line L है. Suppose line L. No need to draw the diagram. Suppose line L makes 60 degree. Suppose line L makes 60 degree with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Is clear? Anti-clockwise, clockwise. In the anti-clockwise direction in the makes 60 degree in the anti-clockwise direction. Okay. तो आपको पता है, suppose line L makes theta with positive direction of x-axis. So here is easy. Theta कितना है? 60 डिग्री. पर वो रेडियन में हम रखते हैं, तो 60 डिग्री कितना होता है? pi/3. तो slope of L कितना आएगा? Slope of L prefer. Some teachers are very you can say peculiar कि उनको वो एंगल हमेशा रेडियन में ही चाहिए. तो slope of L m कितना आएगा? tan theta. Therefore slope of L का सिंबल क्या होता है? m. So for L सीधा मैं लिखता हूँ. For L m is tan theta. So therefore m is tan of 60 degree. मतलब tan of pi/3. What is tan 60 degree? √3. तो आ गया m is √3. So m is √3. अब देखो अगर त्रिकोणीय आना है तो ये नहीं आएगा. कितना किसी खत्म हो गया. This here inclination alpha. Therefore with alpha I am going with
theta. Okay, now example number 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 और थर्ड हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हम कर सकते हैं। जो पॉइंट्स हमने अभी किए उसके बेस पे इजीली वी कैन डू। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, line through the points, let example number 3 में मैं a रखता हूँ -2,6, b में रखता हूँ 4,8 और c में रखता हूँ 8,12 और d में रखता हूँ x,24। This is a 1 mark question. Line through a -26 and 4,8 is perpendicular to the line passing through the points 8, 12. कहने का मतलब can I say AB is perpendicular to CD? And मैंने ये 4 पॉइंट से पहले पॉइंट को A रखा, दूसरे पॉइंट को मैंने B रखा है, पहले पॉइंट को मैंने L रखा है, दूसरे पॉइंट को मैंने D रखा है। तो इधर can I say here line passing through A and B is perpendicular to the line passing through C and D. So can I say AB is perpendicular to CD? दो लाइंस परपेंडिकुलर है। लेट M1 is equal to slope of M1 is equal to slope of AB और M2, तो M1 कितना आएगा, स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स अरे डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। तो M1 निकालो, M1 कितना आएगा, डिफरेंस इन AB का स्लोप निकालना है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स मतलब 8 minus 6 ऐसे करना पड़ेगा। अब 8 minus 6 अपॉन 4 minus of minus 2 4 minus of minus 2 8 minus 6 लिखो आप 8 minus 6 अपॉन 4 plus 2 मतलब 8 minus 6 होता है 2/6 which is 1/3। So M1 for line AB 1/3 आया। So for line AB उसका स्लोप M1 कितना आया, 1/3। Now let M2 is slope of CD को, let M2 is slope of CD, therefore M2 निकालना है, C और D में फोकस करो, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। I will go with 24 minus 12, तो नीचे क्या आना चाहिए, 24 minus 12 अपॉन x minus 8। तो therefore M2 कितना आएगा, therefore M2 हो जाएगा M1 is 1/3, so M2 कितना आएगा, 24 minus 12 is 12 upon x minus 8, so 12 upon x minus 8, this is M2। okay, for line C इधर नहीं है और M1 हमारा कितना आया, M1 हमारा आया था 1/3, कौन सी लाइन थी, फॉर AB। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, AB और CD कैसे है, AB और CD परपेंडिकुलर, AB और CD परपेंडिकुलर है। सोचो कैसे करेंगे, AB और CD परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू निकालना है। AB और CD परपेंडिकुलर है, here AB is perpendicular to CD, since AB is perpendicular to CD, M1 into M2 क्या होना चाहिए, -1। फिनिश, बस सब्स्टिट्यूट कर दो M1 और M2 को और इस रिलेशन में M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू M1 आया था 1/3 और M2 आया 12 अपॉन x minus 6, सब्स्टिट्यूट करो और ये रिजल्ट से आंसर लेके आओ, 1/3 into 12 अपॉन x minus 8 equal to -1 कितना आएगा, 12 4, so 4 upon x minus 8 is -1। okay, तो अगर यहाँ पे ये आता है तो फिर अब कैसे, अब इधर x का वैल्यू ढूंढेंगे, तो इधर x का वैल्यू कैसे मिलेगा, इधर x का वैल्यू मिलेगा 4 into 4 is equal to, therefore पूरा कैलकुलेशन में सम है, अगर आप कैलकुलेशन गलत करोगे तो आपका
what is x? X is 8 minus 4, so x is 4. For AB perpendicular to CD, जस्ट एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताता हूं, अगर इधर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती, सपोज ये दोनों लाइंस पैरेलल होती, AB पैरेलल टू CD रखते हैं, लेट AB पैरेलल टू CD रखते हैं, लेट सेकंड केस में नोट करके एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, लेट AB पैरेलल टू CD, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप कैसे आता है, इक्वल, सो m1 is equal to m2 और रखते हैं m1 is equal to m2 रखते हैं, m1 कितना था 1/3 is equal to m2 कितना आएगा, रिजल्ट है 12 अपॉन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं x - 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x - 8 is equal to 12 3 36, x कितना आएगा 36 plus 8, तो x आएगा 44। अगर क्वेश्चन ये होता कि लाइन पासिंग थ्रू -2 6 and 4 8 is parallel to the line passing through 8 12 and x 24, so therefore x का वैल्यू कितना आया 36 plus 8 44, x में नहीं है पर मैंने खाली ऐसे बता दिया, for AB parallel to CD, for AB parallel to CD, anyone question they can ask, both the question they can ask for 1 mark. Line through the points -2 6 and 4 8 is perpendicular to the line through the points 8 12 and x 24, find the value of x, perpendicular में 4 आता है, yes, और parallel में 1/3 is equal to 12 upon x - 8, so x - 8 will be 12 3 36, so 40%. Okay, and now just 1 minute, can I solve one more sum? Okay, I can solve one example only, or we will start with the exercise in the next class, next video lecture. Example number third I have that, so let me do example number 5, which will summarize one more theory. उसके बाद हम आगे next जो भी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज बाकी है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. Example number 4, let us do example number 4. क्या दिया है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स HK, 3 पॉइंट्स HK, लाइन वाला लाइन R क्या दिया हुआ है, P is HK, P is HK, फिर Q is x1 y1, R is x2 y2, they lie on the line. Suppose they lie on the line L, suppose they lie on the line L, HK Q x1 y1 and R x2 y2 lie on line L. इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, वो L पे है, they are on L, तो उसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स क्या है HK, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, R के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, R के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, so the point R they lie on the line L, इसका मतलब therefore P Q R R collinear, P Q R R collinear, उसका मतलब slope of P, मतलब slope of line L constant होता है, अगर 3 पॉइंट्स collinear हैं तो slope of PQ will be equal to slope of QR will be equal to slope of PR, ठीक है. तो अब जो उधर पार्ट है उसमें हम आगे जाएंगे, पहले rely on line L, so they are collinear, therefore slope of PQ will be equal to slope of QR, which will be equal to slope of PR, yes or no? Yes, definitely. अब टू दैट पार्ट में क्या चाहिए, टू दैट पार्ट में h x1 y2 हमको चाहिए h minus x1 और k minus y1 चाहिए, ओके, और y2 minus y1 और x2 minus x1 चाहिए. मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ स्लोप इन दोनों का यूज से करना है और इन दोनों का यूज से करना है. टू दैट पार्ट आप समझो, therefore मैं क्या लिख रहा हूं, slope of line PQ is equal to slope of QR, slope of QR वो मैं यूज करता हूं, ये रिजल्ट में से ये यूज करता हूं, और slope of PQ, through that part is slope of PQ,
कोऑर्डिनेट्स मतलब k minus y1 upon h minus x1 is equal to slope of qr। तो मैं यूज करूंगा y1 minus y2 upon x1 minus x2, या फिर उल्टा जाओ इस बार y2 minus y1 upon x2 minus x1 सिलेक्ट करो। प्रूव दैट पार्ट में ध्यान दो, स्लोप कैसे निकालना है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। प्रूव दैट पार्ट में k minus y1 है, यस इसलिए मैंने k minus y1 upon x minus x1 दिया, और प्रूव दैट पार्ट में y1 minus y2 और x1 minus x2 नहीं है, y2 minus y1 है, इसलिए मैं स्लोप ऑफ qr कैसे आएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1 से सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आई बिलीव आपका आंसर आ गया, k minus y1 into x2 minus x1 is equal to h minus x1 into y2 minus y1। वन मार्क के लिए काफी सिंपल क्वेश्चन, h का क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा ले लो, आ गया। ठीक है, तो आप देखो अगर आपको थियरी पता है, इफ यू आर नोइंग द थियरी ऑफ दिस चैप्टर, अगर आपको वो थियरी मिल गई है, इफ यू आर रिमेंबरिंग इट एंड इफ यू रिकॉल इट, इससे इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। आपको ये फिर सारे सम्स 5-5 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार 2 बार इफेक्टिवली सॉल्व कर दिए, वेरी इजीली यू कैन स्कोर। आ गया आंसर इक्वल टू k minus y1 into x2 minus x1 finished। I will end today's class here and we will be starting off with the exercise 10.1 and I will finish off the remaining examples before exercise 10.1 बाकी है in the next upcoming video lectures। पहले exercise 10.1 हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद remaining examples खत्म करेंगे। आपको पता चल गया कि आपको इसकी थियरी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और काफी बार रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको थियरी आएगी तो सब इजीली उनको आ जाएंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर।